نگراں وزیراعلیٰ کے مشیر برائے کھیل وہاب ریاض پنک گیمز کی اختتامی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسمال ٹائم کے انشاءاللہ اگلے سال مارچ میں جس طرح ہم لوگوں نے کہا کہ یہ وومن فیسٹیول ڈے جس دن ہوگا اس دن ہم اس کو اس سے منسلک کریں گے، اور اگلے سال مارچ میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے پنک گیمز ہوں گی۔ اس دفعہ جو انعامات تھے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے ڈبل ہوں گے، اور ہوپ فلی ہم اس کو ایک اور بہتر طریقے سے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوگا تو ہم اسے ایک اور بہتر طریقے سے آرگنائز کریں گے، تاکہ اور بھی جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں اور بھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کا حصہ بن سکے اور زیادہ سے زیادہ پرفارم کر سکے اور اپنے ٹیلنٹ کو شو آف کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ٹیم میں جس طریقے سے یوتھ افیئرز ہمارے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریٹر عمیر صاحب، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ندیم صاحب جو ہمارے آفیسر ہیں ڈائریکٹر سپورٹس، ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس کو دن رات محنت کر کے اس ٹورنامنٹ کو جو ہے وہ پرفارم کرنے میں اور آرگنائز کرنے میں بہت زیادہ محنت کی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور اسپیشلی ایک اور اسپیشل آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، عارضی مویشی منڈیوں پر ٹیکس درتے سر بن گیا۔ عارضی منڈیوں پر ٹیکس لگانے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ ٹیکس لگانے کا قانون آفیسروں کے گلے کی ہڈی بن کر سامنے آ گیا۔ سیکرٹری بلدیات کمشنر سی ای او کیٹل کمپنی ریٹس کی اجازت دینے سے گریزاں ہیں۔ عارضی مویشی منڈیاں لگانے میں صرف 7 روز باقی رہ گئے۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ نگران وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری نے عارضی مویشی منڈیاں پنجاب کیٹل مارکیٹ کی طرز پر لگانے کی زبانی منظوری دی۔ سیکرٹری بلدیات کمشنر سی ای او کیٹل کمپنی ریٹس کی اجازت دینے سے گریزاں۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں 229 لوکل گورنمنٹس کے افسران مویشی منڈیوں کے ریٹس بارے گومگو کا شکار۔ نگران حکومت کے فیصلے پر محکمہ بلدیات بے بسی کی تصویر بن گیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے سیکشن 99 میں ٹیکس لاگو کرنے کا قانون ہے۔ ٹیکس لاگو کرنے کے طریقہ کار میں 30 روز میں اشتہار دینا شامل۔ ٹیکس لگانے سے قبل شہریوں اور سٹیک ہولڈرز کی رائے لینا بھی ضروری ہے۔ 30 روز بعد رائے اگر ہاں میں آئے تو ٹیکس لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکس لگانے کا دوسرا طریقہ کیٹل مینجمنٹ کمپنی بورڈ سے اجازت لینا ہے۔ کیٹل مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ فعال نہ ہونے سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عارضی مویشی منڈیاں لگانے میں صرف 7 روز باقی رہ گئے۔ نگران حکومت چیف سیکرٹری کے احکامات کے بعد محکمہ بلدیات سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 229 لوکل گورنمنٹس کے چیف افسران عارضی منڈیوں پر ٹیکس لگانے کے لیے حکم نامے کے منتظر ہیں۔ سیکرٹری بلدیات کمشنر سی ای او کیٹل مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے ابھی تک لکھ کر نہ دیا جا سکا۔ مویشی منڈیوں میں ٹیکس زبانی طور پر لگائے جانے کے احکامات دیے گئے۔ ریٹس کے تعین بارے کوئی آفیسر ٹیکس لاگو کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں کر رہا۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں یہ کہا کہ مویشی منڈی میں جانوروں پر ٹیکس لگنا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ پہلے تو جب وہ لاہور میں گھسیں گے اور جو نارمل منڈیوں والے کانٹریکٹر ہیں وہ ان سے پیسے لیں گے فی پھیرے کے حساب سے، اور اس کے بعد جب وہ منڈی میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر 500 روپیہ چھوٹے جانور پر، 1000 روپیہ بڑے جانور پر۔ بہت بڑا امتحان ہوگا۔ شہباز شریف صاحب بھی اسی صوبے کو چلا رہے تھے، یہاں سے ہی منڈیاں لگتی تھی، یہیں کے وسائل استعمال ہوتے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ جو لوگ پورے پنجاب سے مال مویشی یہاں بیچنے آتے تھے وہ اتنے خوش و خرم جاتے تھے واپسی پر۔ سیکشن آفیسر کمپنیز لوکل گورنمنٹ محمد اسلم ندیم نے واٹس ایپ پر منڈیوں پر ٹیکس لگانے کا مراسلہ جاری کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے وفاقی بجٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین ایپٹما کہتے ہیں اگر بجلی گیس مہنگی ہو گئی تو 1 جولائی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل بند ہو جائے گی۔ پہلے ہی 7 لاکھ مزدور گھروں میں بیٹھے ہیں، مزید 20 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایپٹما لاہور میں ایپٹما کے عہدیداروں کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ چیئرمین ایپٹما حامد زمان نے وفاقی بجٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اگر بجلی گیس مہنگی ہو گئی تو 1 جولائی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل بند ہو جائے گی۔ پہلے ہی 7 لاکھ مزدور گھروں میں بیٹھے ہیں، مزید 20 سے 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ہم حکومت سے بجلی میں سبسڈی نہیں مانگتے، چوری شدہ بجلی کی رقم کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پچھلے سال ہمارا $20 ارب کا ہدف تھا، ہم نے آلموسٹ اچیو کر لیا۔ اس آخری 3 مہینے میں آپ کو یاد ہے کچھ گڑبڑیں ہو گئی، انسٹیبلٹی آئی، تو ہم 20 ارب سے رہ گئے۔ اس سال ہم نے 25 ارب پہ جانا تھا، اور 5 سال میں صرف ٹیکسٹائل ہم نے 5 سال میں 50 ارب پہ جانا تھا، اور اس کا پورا ہم نے بلو پرنٹ بھی دیا کہ کس طرح 1000 سٹیچنگ یونٹس لگیں گے، $20 ملین، 20 ارب کی وہ ٹوٹل 7 ارب کی وہ
ایک انویسٹمنٹ ہوگی اور $20 ارب پر ایئر وہ لے کے آئے گی۔ چیئرمین ایپٹما نے مزید کہا کہ ہم نے $3 ارب کی ریکوری کے لیے پوری قوم کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ٹارگٹ کے مطابق اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو $9 ارب کا خسارہ ہے۔ دوسرے ممالک ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سبسڈی دیتے ہیں، ہم سبسڈی نہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ملک کا کتنا نقصان ہوا کہ ہم $3 ارب کے لیے سارے ملک کو ہم نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے، ساری عوام کو ہم نے برا حال کر دیا ہے، اور اتنی مہنگائی ہوگی کوئی حساب نہیں۔ $3 ارب ہمیں نہیں مل رہے۔ ایپٹما کے عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات بھی ہوئی، وعدے بھی کیے گئے، مگر نہ جانے کیوں بجٹ میں سب وعدوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پنجاب کا بجٹ کیسا ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی چیف سیکرٹری اور دیگر شریک تھے، جبکہ اجلاس میں وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ کو فائنل کرنے کے لیے امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں پنجاب کے 4 ماہ کے لیے بجٹ سفارشات پر حتمی منظوری لی گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کی جانب سے نگراں حکومت اور سول بیوروکریسی کو عوام کو ریلیف دینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کی جانب سے پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پنجاب پولیس نے بڑے بجٹ کی ڈیمانڈ کر دی۔ پنجاب پولیس نے $1 ارب 70 ارب کا بجٹ مانگ لیا۔ گزشتہ سال کی نسبت 26 ارب کا زائد بجٹ مانگا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات پنجاب پولیس کے بجٹ تک پہنچ گئے۔ پنجاب پولیس نے آئندہ مالی سال کے لیے $1 ارب 70 ارب کا بجٹ مانگ لیا۔ بجٹ کا 82% حصہ ملازمین کی تنخواہوں پر خرچ ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجٹ پولیس کی تنخواہوں، پینشن، پیٹرول، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگیوں اور سیکورٹی معاملات پر خرچ ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پیٹرول کے لیے 100% اضافے کے ساتھ 10 ارب سے زائد کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ بجلی، گیس اور پانی کے بلز کی ادائیگیوں کے لیے بھی 100% سے زائد بجٹ مانگا گیا ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت نے پولیس کو اب تک $1 ارب 46 ارب کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے 26 ارب سے زائد بجٹ مانگا گیا ہے۔ نئے تھانوں کی تعمیر، پولیس لائنز کی تعمیر اور ٹریننگ سینٹر کے لیے بجٹ علیحدہ سے ہوگا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے تخمینہ بجٹ حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کے افتتاح کے موقع پر رونقیں لگ گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوان شیزہ فاطمہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کا افتتاح وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے امور شیزہ فاطمہ اور نون لیگ کے رہنما رانا مشہود نے کیا۔ شیزہ فاطمہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے کھیلوں کے اداروں کو بھی بند کیا۔ انہوں نے فٹ بال سمیت دیگر ایونٹس منعقد کروانے کا بھی اعلان کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم مل کے کام کریں گے اور آئندہ آنے والے سالوں میں ہم بہتر طریقے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی جب مل کے کام کریں گے تو بچوں کے لیے اور کھیلوں کے لیے کوئی اچھی چیز سامنے آئے گی، تاکہ ہمارے یہ بچے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیلیں اور ہمارے لیے اور پاکستان کا پرچم بلند کریں۔ پنجاب کے مشیر برائے کھیل وہاب ریاض نے کہا کہ کھیلوں میں زیادہ سے زیادہ خواتین کی شرکت خوشائند ہے۔ ہم لوگ جو اپنی وومنس ہیں ان کو امپاور کر رہے ہیں۔ آئی تھنک بچیوں کے لیے بہت کم سوچا جاتا ہے اس ملک میں وین اٹ کمز ٹو اسپورٹس، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو عورت ہے وہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، یا ایک بچی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود کا کہنا تھا وفاقی بجٹ میں کھیلوں کے لیے بڑی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ پی ایم ایل این اور اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے مل کر یوتھ ایکٹیویٹیز کو، یوتھ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا، اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا، اور سب سے اہم بات کہ یہ جو ٹیلنٹ سامنے آئے گا اس کو پھر سنبھالنا۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈیفرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اس میں سے پاکستان کا مستقبل نکل کر آئے گا۔ صوبائی مقابلوں کے لیے 20 سے 30 لاکھ کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا۔ بڑی بڑی سیاسی شخصیات کے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے جوابی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کے مطابق جنوبی اور سینٹرل پنجاب کے اہم سیاسی خاندانوں سے پیپلز پارٹی کے رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے اہم سیاسی خاندانوں کے چشم و چراغ عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ جنوبی پنجاب سے لغاری، تریشق، مخدوم، جٹ، جتوئی، وٹو، بلوچ، رائے ممروڈ سمیت دیگر سیاسی خاندان پیپلز پارٹی میں شامل کیے جائیں گے۔ سینٹرل پنجاب سے ٹوانے، مہر، جٹ، کشمیری، راجپوت سمیت دیگر خاندان پیپلز پارٹی میں شامل کیے جائیں گے۔ ماضی میں ان اہم سیاسی خاندانوں کا پنجاب کی سیاست میں اہم کردار رہا ہے۔
वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि 9 मई का वाक़या एक सोचा समझा मंसूबा था। इसके मास्टरमाइंड को बगावत के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे और नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे। फाहद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की लेस्को हेड क्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि साबिक हुकूमत के 4 बरस मुआशी अबतरी के साल थे। मौजूदा हुकूमत ने आकर सी पैक और पावर सेक्टर में पूरी रफ्तार से मंसूबों को शुरू किया। बिजली सार्फिन को नए माली साल में 870 अरब रुपए का रिलीफ मिलता रहेगा। लाहौर समेत दीगर शहरों में गैर अलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। रवां साल 5000 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल की है। 870 अरब रुपए बनते हैं, ये जो कि रिलीफ है, आप उसको सब्सिडी कह लें, सपोर्ट कह लें, लेकिन ये वो रकम है जो सार्फिन के बिलों में नहीं जाएगी और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये अदा की जाएगी। ये जो नई बिजली हमने 5000 मेगावाट ऐड कर दी है, उसकी वजह से लोड शेडिंग के मामले में इंशाल्लाह ऑलरेडी आपने बेहतरी महसूस कर ली होगी और आने वाले जो बाकी हफ्ते हैं मौसम गर्मा के, उसमें आपको बहुत बेहतरी महसूस होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने मजीद ये भी कहा, 9 मई का वाक़या अवामी एहतजाज नहीं था, सोची समझी साजिश और बगावत थी। वाक़े के मास्टर माइंड बच नहीं सकेंगे। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आकर इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। ये जो किसी भी तरह एहतजाज नहीं था, किसी भी तरह अवामी इजहार नहीं था, ये एक बगावत की साजिश थी, तो लिहाजा उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो लिहाजा उनका तो ये मुस्तकबिल है कि वो इस सिडिशियस कंस्पिरेसी जिस पे कानून का इतलाक होगा इंशाअल्लाह उसका जवाब दें। इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन की मुहिम में जो कुछ महीनों बाद शुरू होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई का कहना था कि पाकिस्तान से निकलने वाली कुदरती गैस हर साल कम हो रही है, इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली का सामान मुहैया कर दिया, जल्द मुलाजमीन की कमी भी दूर की जाएगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। अहम खबर आपके साथ शेयर करें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मीडिया पर नुमाइंदगी के लिए 7 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए हैं। इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नूरानी पार्टी के तर्जुमानी करेंगे, जबकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान भी पार्टी के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर मुराद राज मेजर रिटायर खुर्रम रोखड़ी को भी पार्टी मौक़िफ़ देने की इजाज़त दे दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी उहदेदारों का भी ऐलान कर दिया गया था और जहांगीर खान सलीम की जानब से पार्टी के 7 तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए गए जो मीडिया पर जो है वो पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इनमें इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नूरानी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर मुराद राज, मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी, ये 7 शख्सियात हैं जिनको जहांगीर खान सलीम ने आज से नामजद किया है। ये पार्टी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मीडिया पर नुमाइंदगी करेंगे और पार्टी का मौक़िफ़ जो है उनकी तर्जुमानी किया करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करके ख़त्म होगी। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले मुल्क में होंगे। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। अरफा टेक्नोलॉजी पार्क में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ज़रिए एहतमाम पंजाब डेटा रिकॉर्ड लॉन्च की तकरीब वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। राना तनवीर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि साबिक दौरे हुकूमत में हर डिपार्टमेंट में करप्शन हुई। कोरोना के दौरान 1200 अरब रुपए खर्च हुए, मगर 200-250 अरब के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं। साबिक दौर में मनपसंद अफराद को 3 अरब डॉलर के कर्जे दिए गए। वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। कोविड का मैं करप्शन की बात करता हूँ, 1200 अरब रुपया था, जो 250 अरब मिला सिर्फ ये सारे एक्सो, बाकी कोई पता नहीं। मैंने पूछा किधर गया, मुझे बताया भी उन्होंने, मैं बता नहीं सकता वो पैसे किधर गए, लोगों की जेबों में गए। फिर उसने कोई $3 बिलियन अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को दिए, $3 बिलियन इन डॉलर्स नॉट इन रुपीज़ के दे दिए, डोल आउट कर दिए अपने फेवरेटीज़ को जो मुस्लिम लोग थे। उसके नाम हमें स्टेट बैंक नहीं दे रहा कि जी नहीं, मेरा वो सीक्रेसी है, मैं नाम नहीं दूंगा। राना तनवीर हुसैन का मजीद कहना था कि 23 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो बाइस से शर्मिंदगी है। 30 जून तक 50,000 बच्चे स्कूलों में वापस लाएंगे। यूनिवर्सिटीज की ग्रांट को कारकर्दगी से मशरूत करेंगे। 23 मिलियन जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नंबर है, 0.7, 0.8,
तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा है। तकरीब में डीजी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शाहिद सरोया, चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन उमर फजल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि सियासत को चंद खानदानों से निकाल कर 24 करोड़ आवाम तक ले जाने का मिशन है। मुल्क के नौजवान मायूसी का शिकार हो चुके हैं। किसी सियासी जमात ने आज तक नए चेहरों को मौका नहीं दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। मुस्लिम लीग काफ में सियासी रहनुमा और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों से तहरीक इंसाफ के दर्जनों अफराद काफ लीग का हिस्सा बन गए। आरववाला से कौमी असम्बली के उम्मीदवार वसीम जफर जैद साथियों के हमरा मुस्लिम लीग काफ में शामिल। PTI यूथ विंग के मियां हमजा करामत और PP 145 PTI के सदर अतर खान भी काफ लीग के हो गए। दर्जनों की तादाद में यूसी नाजिम और काउंसलर्स की भी मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अगर 2 साल मिल जाएं तो सियासत को 1000 खानदानों से निकाल कर 24 करोड़ लोगों में बांट दूंगा। अफसोस हमारी सियासत इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। मैं सियासत को 1000 खानदानों से निकाल कर बाहर 24 करोड़ आवाम में लाना चाहता हूँ। अगरचे इलेक्शन में टाइम बहुत कम है, अगर 2 साल मुझे मिल जाते, हमारे वर्कर्स जो हैं वो हर तरफ आपको नज़र आते, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई भी जमात जो है पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स के नरगे से नहीं निकली। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद कहा कि मुल्की सियासत में नए चेहरे सामने लाने के लिए जिद्दोजहद शुरू की। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पार्टी वर्कर्स को इज्जत नहीं दी जाती। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो पार्टियों के कारकुन हैं या पार्टियों के वर्कर्स हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती। उनका काम सिर्फ दरियाँ बिछाना है, नारे लगाना है, कुर्बानियाँ देना है, और जब इक़्तिदार में आ जाएं तो उनको इक़्तिदार में उन्हें इक़्तिदार में भी हिस्सा नहीं मिलता। चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि स्टेटस को से पूरा पाकिस्तान तंग है। हमारे उम्मीदवारों की अक्सरियत नौजवानों और मिडिल क्लास पर मुश्तमिल होगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी कहते हैं मुल्क इस वक्त मुआशी, सियासी और आइनी बहरान का शिकार है। PTM हुकूमत ने अवाम को मायूस किया। बहरान का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन का वक्त पर इनेकाद है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में जमात इस्लामी के दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी का कहना था कि इस वक्त मुल्क सियासी, माशी और आइनी बहरान का शिकार है। PDM की शक्ल में 13 जमाती इत्तेहाद मसाइल में इजाफे का बाइस बन रहा है। PDM के नाम से जो 13 जमाती इत्तेहाद इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, बदकिस्मती से ना सिर्फ ये कि उन्हें मसाइल का इदराक नहीं है, बल्कि वो कौम को इन मसाइब से दोचार करने का ज़रिया बन रहे हैं। कौम के दुखों और मसाइल को दूर करने की बजाय वो कौम के दुखों और उनके मसाइब को बढ़ाने का और मसाइल में इजाफे का ज़रिया बन रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पंजाब का मजीद कहना था कि अक्टूबर 2023 को इलेक्शन की डेडलाइन समझते हैं। अगर वक्त पर इलेक्शन ना करवाए गए तो ये आइन और कानून शिकनी होगी। वक्त पर इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जिन क्राइसिस के अंदर है, इसका हल इसके सिवा कोई नहीं है कि कौम को मौका दिया जाए, शफाफ इंतखाबात हों और एक नए मैंडेट के साथ जो भी आए वो मुल्क को इस दलदल से निकाले। अगर PDM की हुकूमत इलेक्शन ना करवाने की तरफ जाएगी तो जमात इस्लामी इसकी मुज़ाहमत करेगी। जावेद कसूरी का कहना था कि अल खिदमत ट्रस्ट का जमात इस्लामी में अलग निज़ाम है, इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद कहते हैं कि नैब को अकबुत खाना नहीं बनाना, हमारा असल मकसद करप्शन और वाइट कॉलर जराइम का खात्मा है। उन्होंने नैब का खोया हुआ मकाम वापस दिलाने का वादा भी किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। नैब लाहौर में मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना था कि करप्शन केसेस में बिल वास्ता या बिला वास्ता रिकवरीज हो रही हैं। माजी में नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। नैब को अकूबत खाना नहीं बनाना। गुज़श्ता कुछ अरसा में नैब तनाज़ात का शिकार रहा। पिछले कुछ अरसे में ये कुछ तनाज़ात का शिकार भी रहा। इसको एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, कहीं हुई भी, जिसकी वजह से आप देखें कि इसका जो बुनियादी जो फोकस था अपने अहदाफ से हट के किसी और जानिब शिफ्ट हो गया था।
चेयरमैन नैब ने नैब अफसरों को करप्शन केसेस जल्द निपटाने की हिदायत की है और कहा है कौम ने हमें जो जिम्मेदारी दी इसको पूरा करेंगे। मैं तमाम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पहले नैब की अपनी इस्लाह करेंगे, कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम आपका जो ट्रस्ट है वो हासिल करके लेंगे, और इस कौम ने जो हमें, इस मुल्क ने जो हमें जिम्मेदारी बख्शी है उससे हम ओहदा बरा होंगे इंशाअल्लाह। तकरीब में चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को करप्शन केसेस में बरामद होने वाले 80 लाख रुपए का चेक भी दिया। और अभी आपको बताएं, मिस्री शाह के इलाके में एक मोरिया पुल के इलाके की सूरत हाल रिहायशियों के लिए दर्द सर बन गई। इलाके में मैनहोल्स के ढक्कन गायब, सड़क शदीद टूट फूट का शिकार और सीवरेज सिस्टम भी बिल्कुल नाकारा हो चुका है। मजीद क्या सूरत हाल है ये बताएंगे मुबीन हैदर। जी बिल्कुल इसी तरह से सूरत हाल है कि इस वक्त हम लोग एक मोरिया पुल के पास मिशरी शाह के इलाके में मौजूद है और यहाँ के इलाके की हालत इतनी खस्ता है, यहाँ पर जो सड़क है वो बनती दिखाई नहीं दे रही। अरसे दराज से जो है सड़क की जो तरक्याती मंसूबे के तौर पर रोकी गई है, उसके बाद सड़क का तरक्याती काम जो है यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा। सड़क तो खराब है ही है, उसके साथ साथ जो यहाँ का मेन मसला है वो ये है कि मेन होल्स के ढक्कन गायब हैं, सीवेज सिस्टम खराब है। अगर मेरा कैमरामैन फखर अब्बास आपको दिखाए तो यहाँ पर अब बिल्कुल मेरे साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेन होल का ढक्कन गायब है, उसके अंदर जो है मलबा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से सीवरेज सिस्टम भी जो है बंद होने का शिकार। उसके अलावा अगर थोड़ा सा मेरे पीछे आपको मेरे कैमरामैन फखर अब्बास दिखा सके तो यहाँ पर भी जो है मेन होल का ढक्कन गायब है, गटर का पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, गटर के ऊपर गटर का पानी मौजूद है, सीवरेज सिस्टम खराब है। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बहुत ज्यादा मसले मसाइल का जो है शिकार लोगों को होना पड़ रहा है। उसके अलावा लोग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ते हैं। शहरियों को कहना है कि रात गए यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनको जख्म आ जाते हैं, गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। इलाका मकी हमारे साथ मौजूद ही नहीं से जानते ही नहीं कि जुबानी के क्या इलाके की सूरत हाल है। हमारा MP तो इधर हमजा साहब है, शाहिर खान अब्बासी MNA है, लेकिन फंड जो है ना सारे मियाँ मुश्तबा के पास है। इन इलाकों के फंड रिलीज हो चुके हैं लेकिन इनका काम मुकम्मल नहीं किया गया, इनके फंड खुर्द बुर्द कर दिए गए। अपने काम उन लोगों ने करवा लिए हैं, हमारे फंड रोक दिए हैं, जिससे ये मेन GT रोड लिंक रोड है, बाहर GT रोड है, वो सामने GT रोड है, ये लिंक रोड है। यहाँ से शुमाली लाहौर की सारी आबादी आती जाती गुजरती है और रोज लोग एक्सीडेंट होके रोज 11 22 आती है, यहाँ से किसी न किसी को उठा के लेके जाती है। और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या सूरत हाल इलाके? हमारे घर के अंदर इतने मच्छर हैं कि हमारे बच्चे 3-3 दिन बीमार रहते हैं, ठीक नहीं होते। एक बात और इतनी की मट्टी है कि सारा दिन हम सफाई करते रहते हैं, मट्टी भी खत्म हो जाती। ढक्कन में इधर रात को हम बुजुर्ग निकालते हैं, मैंने खुद निकाली है, हमारी माँ जैसी औरतें निकाली हैं, गिरी हुई बुजुर्ग निकाले हैं, किसी की आंख चली जाती, किसी की टांग चली जाती। इधर जिसके पास जाते हैं वो कहता है उसको बोलो, वो कहता है उसको बोलो, ये कोई किसी की हमारी बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल जैसे कि आपने सुना टाल मटोल से काम लिया जाता है। इलाके के अंदर बदबू फैल रही है, यहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, कीड़े पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है यहाँ पे हर जगह, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया गायब नजर आती है। यहाँ पे इलाके की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, ट्रैफिक बार बार जाम हो जाती है, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी इंतजामिया है यहाँ पर फुल और फौरी तौर पर एक्शन लेगी और तरजीह बुनियादों पर जो इलाके के मसाइल इनको हल किया जाएगा। जी चाइल्ड लेबर का आलमी दिन अलहमरा हॉल में भी चाइल्ड लेबर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब के शुरका ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील अली। चाइल्ड लेबर का आलमी दिन अलहमरा हाल में लेबर डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक और निजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर दिया। तकरीब की ऑर्गेनाइजर सबा शेख ने कहा कि मुल्क में चाइल्ड लेबर के हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। पंजाब के अंदर कानून बना हुआ है कि 15 साल से कम उम्र जो बच्चा है वो मजदूरी नहीं कर सकता और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 6 महीने कैद और 50,000 रुपए जो जुर्माना है वो आयद किया गया है। तकरीब में बच्चों ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर भी बच्चों को डराने धमकाने और हरासगी के केसेस पर नोटिस लेना चाहिए। बच्चों को तालीम हासिल करवाई जाए। जितने बच्चे हैं जो लेबर करते हैं, इतने बहुत से इस तरह के बच्चे हैं जिनको लेबर नहीं करनी चाहिए, उनके पढ़ने का उम्र है तो वो पढ़े। अगर हमें कोई ब्लैकमेल करे या किसी भी तरह से ब्लैकमेल करे तो हमें सबसे पहले अपने फादर्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने ऐसे लोगों को बताना चाहिए जिन पे हमें पूरा इत्मीनान हो। तकरीब में शरीक बच्चों ने चाइल्ड लेबर के हवाले से टैबलो भी पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। चाइल्ड लेबर के आलमी दिन की मुनासिबत से लिबर्टी चौक में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने आगाही वॉक की क़ियादत की। कहती हैं वॉक का मकसद बच्चों से बदसलूकी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों के इस्तेहसाल के बारे में आगाही देना है।
बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लिबर्टी चौक में आगाही वॉक का इनकाद किया गया, जिसकी क़ियादत चेयरपर्सन सारा अहमद ने की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सफीर नादिया जमील, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा, जावेद इकबाल और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी से मुतालिक बैनर्स उठा रखे थे। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि वॉक का मकसद बच्चों से बदसलूकी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों के इस्तेहसाल से आगाही देना है। बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। पढ़े लिखे लोगों ने भी घरों में बच्चों को मुलाजमत पर रखा है। हम सब ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खात्मा करना, और ये किसने करना है खात्मा? ये हम सब ने मिल के करना है। कोई एक इदारा, एक डिपार्टमेंट इस चीज़ पे काबू नहीं पा सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। हमने इस पे मिल के काम करना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों का कहना था कि उन्हें तालीम और तरबियत देकर बेहतर मकाम तक पहुंचाया जाए। अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, उनको अच्छे मकामात पर पहुंचाएं। अगर नहीं तो जैसे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन में रह रहे हैं, हम भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के बच्चे हैं, वो उधर आके एडमिशन करवा दें। पहली बात, बच्चों को काम पर ही ना रखें, और अगर वो रख लें तो कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सबसे पहले उनको वहाँ से निजात दिलवाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आगाही वॉक में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और आम शहरियों ने शिरकत की। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।